Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Wonderful. Amen. Beautiful. All right. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ. We're going to turn towards the word. All right. So ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ. We're going to share something special today from the word. कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, What is our identity in Jesus? हमारी इंट्रोडक्शन क्या है, What is our introduction? हम कौन है मसीह में, Who are we in Christ? हम अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारी परिभाषा क्या है, How do we define ourselves or present ourselves? हम क्या बताते हैं अपने बारे के हम कौन हैं. What do we say of ourselves that who are we? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बारे में आपका दुश्मन जो कहता है आप वो नहीं है. I want to tell you what your enemy says about you. You are not that. जो लोग आपसे नाराज हैं, आपके खिलाफ हैं, वो आपकी जो डेफिनेशन देते हैं वो आप नहीं हैं. Those who are upset with you or who are mad at you and what they say about you, you are not that. यहाँ तक कि आपके जो मित्र दोस्त जो आपके बारे में पहचान देते हैं आप वो भी नहीं हैं. Even that what your friends call you and say about you, you are not that. कभी कभार जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप वो भी नहीं हैं. Sometimes what you think about yourself, you're not even that. जो आपका पास्ट आपके बारे में कहता है आप वो नहीं हैं. What your past says about you, you're not that. आपके हालात जो आपके बारे में बयान करते हैं आप वो भी नहीं हैं. What your circumstances say about you, you're also not that. क्योंकि हालातों की वजह से इंसान अपने आप को कई बार बहुत छोटा, तिरस्कृत, रिजेक्टेड समझ लेता है. Because many times, because of our circumstances, we feel very small and defeated. कई बार हमारी पास्ट की लाइफ की वजह से हम अपने आप को तुच्छ और बहुत ही छोटा और बहुत ही जो है रिजेक्ट सा महसूस कर लेते हैं. Many times, because of our past life, we think of ourselves very rejected and small. प्रियजनों, हम लोग जो हमारे बारे में कहते हैं हम वो नहीं हैं. Dear people, what people say about us, we are not that. जो आप जब लोगों से रिलेट करते हैं, When you relate to others, जब आप उनके साथ अच्छे हैं, when you're good with them, आपकी पहचान बड़ी अच्छी देंगे. then you come off as a very good person. आपके बारे में बड़ा अच्छा कहेंगे. They'll say very good things about you. जब आपस में कुछ हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, But when there's a disagreement or a problem, वही सेम लोग आपकी डेफिनेशन बदल देते हैं. that same person will change of what you are. आपके बारे में जो क्या वो बयान करते हैं वो बदल जाते हैं. Their statements about you and regards you change. इसलिए लोगों ने जो आपके बारे में कहा उस पर नहीं जाना है. That's why don't go off of what people say about you. उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, What they said about you आपके बारे में आपके लोग क्या कहते हैं, and what they are saying about you. या आपके बारे में क्या कह के आपको चिढ़ाते हैं, खिसियाते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, आप उस टाइटल पर उन बातों पर नहीं जाना है. Or whatever they're saying to make you mad, upset, or even tease you. Don't go off of that कई title. बार लोग अपने बारे में यहाँ तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, यहाँ तो बहुत कम सोचने लग जाते हैं. कोई ना कोई करिए, आप ट्रांसलेट कर. Sometimes people think that you're either really good or very less or very little. हम कभी बार सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा हैं, दूसरों से भी ज्यादा, हम जो रियल नहीं उसके बारे में सोचने लग जाते हैं. Sometimes we think we're more than what we even think that we know that we are. Right. कभी कभार हम सोचते लग जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है जी. Sometimes we start to think that I'm nothing. उन्हों देखो जी, Look at him. उसको देखो जी, Look at them. वो फलाना देखो जी, Oh, look at that guy. उसको देखो जी. Look at them. दूसरों के साथ तुलना कंपैरिजन करके हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं. Comparing ourselves with others, we start to make ourselves very small. दूसरों के बारे में बहुत हाई सोचना शुरू कर We देते think very highly of others. हैं. मेरा नाक नहीं चंगा, My nose isn't good. मेरे बाल नहीं अच्छे, My hair isn't good. ओ जी मेरे जो है कलर नहीं अच्छा जी, My color isn't that great. मेरा जो फेस कट नहीं अच्छा जी. My face shape isn't good. किसी ना किसी तरीके से कंपेयर करके अपने आप को छोटा गिरी जाना है. We'll compare in some way or the other and bring ourselves down. दूसरे बारे में सोच सोच के अपने आप को हीन भावना में लेके आ जाना, उस वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. Looking at others, we bring ourselves down and start going to depression. मेरे पड़ोसी को देखो, Look at my neighbor. वो चाचे के बेटे को देखो, Look at my uncle's son.
दुरानी को देखो, जेठानी को देखो, Look at my sister-in-law and my other sister-in-law. उनकी गाड़ी देखो, Look at their car. उनका घर देखो। Look at their house. ये करते करते सारी जिंदगी कंपैरिजन होता चला जाता Doing this, we compare our entire lives. है और हम दूसरों की वजह से काम करना शुरू कर देते हैं। And we start doing things because of other people. बहुत सारे फैसले हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने वो फैसला लिया होता है। We make many decisions because our relatives have made that same decision. हम अपने बच्चों से कभी कभार वो करवाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के बच्चों ने वो किया है। We tell our children to do some things because our relatives' children are also doing the same thing. हम उनको कहते हैं कि वो सब्जेक्ट कॉलेज स्कूल में चूज करो क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के बच्चों ने वो चूज किए हुए We हैं। tell our kids to go to this certain school or college because our relatives' kids are also going in that certain school or college. हम जाने अनजाने में अपना किरदार, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं और हम दूसरों से पहचान ढूंढना शुरू कर देते हैं। We don't understand our own identity, but yet we start to build our own identity through other people. हमारी पहचान हमारी फीलिंग के अंदर नहीं है Our identity is not in our feelings, कि हम ऐसा फील कर रहा हूं मैं। that I'm feeling this way. आजकल तो लोग अजीब सा भी मैं आज आ फील कर रहा हूं, कल मैं ये फील कर रहा हूं। Many people these days are like, today I feel like this and tomorrow I feel like that. आपकी पहचान आपकी फीलिंग के अंदर नहीं है। Your identity doesn't reside within your feelings or आप कभी emotions. कमजोर फील करेंगे, Sometimes you'll feel weak. कभी निराश फील करेंगे, Sometimes you'll feel sad. कभी आप बहुत जोरावर फील करेंगे। Sometimes you'll feel very powerful. आपकी पहचान, आपकी फीलिंग आपके भावनाओं में, जज्बातों में नहीं है। Your identity does not reside within your feelings or emotions. आपकी फीलिंग, आपका प्रोफेशन, आप उससे भी आपकी पहचान नहीं है। Your feelings also don't relate to you about your profession. हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हैं Maybe that you're doing some work, पर आपकी वो पहचान नहीं है। but that's not your identity. आप उससे बढ़कर हो सकते हैं। You may be higher than that. आपकी पहचान वो है जो परमेश्वर के वचन में आपके बारे में कहा गया है। Your identity is that what the Holy Bible says about you. लोग आए जॉन द बैप्टिस्ट के पास, People came to John the Baptist कहने लगे आप तो जर्मिया लग रहे हैं, and started to say, you look like Jeremiah. आप एलिया लगते You हैं, look like Elijah. वो पुराने नबियों में से एक जैसा लगते Oh, you हैं। look like one of those older prophets. बड़े बड़े टाइटल देना शुरू कर And दिए। they started to give him big titles. पर जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं But John the Baptist says, चढ़ाओ मत मुझे, don't tease me. ऐसा बड़ी बड़े टाइटल दे के मुझे मत चढ़ाओ। Don't give me such big titles मैं and तो tease me. जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज हूँ। I am just one who calls out in the jungles. मेरे बारे में ये शायद नबी की किताब में लिखा हुआ है। It is written about me in the book of Isaiah. मैं वो नहीं जो आप कहते हैं, I am not what you say I मैं am. वो नहीं जो तारीफ के पुल आप बांध रहे हैं, जो तारीफ के पुल आप बांधे, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। I'm not what you're making me up or building me up to be. मैं वो हूँ जो मेरे बारे में बाइबल कहती है। I am that what the Bible says I am. आमीन। Amen? क्योंकि आज जो आपको एलिया जर्मिया कह रहे हैं, Because today they may be calling you Elijah or Jeremiah. कल आपको बोलेंगे ये बदरू से भरा हुआ है। Tomorrow they'll say he's filled with demons. आज जो आपको बोले आप जी अमिताभ बच्चन लग रहे Today हैं, they'll say you look like Amitabh आप Bachchan. ऋतिक रोशन लग रहे You look हैं, like Hrithik Roshan. कल है ना मरिया जा बंदा इन्हें पता है नहीं है कौन है। Tomorrow they say this weak little man, he doesn't know who he वो is. आपके बारे में आज अच्छा बोले, कल अच्छा नहीं बोलेंगे। Today they'll talk good about you, but tomorrow they might not. आप उनके चक्कर में मत रहिएगा, Don't go in those plans क्योंकि वो अपनी जो डेफिनेशन बदल लेंगे। because they'll change the definitions. वाणी कहती है आपने अपनी पहचान परमेश्वर के वचन में जो आपके बारे में बयान किया गया है उसमें ढूंढनी है। The Bible says to find your identity what is written in the Bible. मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता I हूँ want to take your attention इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति में Ephesians chapter 2 Verse verse 10. 10. बहुत अच्छा हवाला है। It's a great verse. इस प्रकार से लिखा हुआ है It's written like this. कि आप परमेश्वर का हाथों की दस्तकारी हैं। For you are God's handiwork. परमेश्वर ने आपको बनाया है, सृजा है, आपकी रचना करी अपने हाथों से। God has created you, made you from his own एक hands. ट्रांसलेशन में लिखा है आप परमेश्वर के मास्टरपीस हो। In one of the translations it's written that you are a masterpiece. आमीन। Amen? लोग कुछ भी कहें, People may say whatever they want. आप अपना चेहरा दे के जो मर्जी कहते रहो, You can look at your own face and say whatever you पर want. खुदावन की निगाहों में, But in the eyes of the Lord, in परमेश्वर की निगाहों में, the eyes of God, you are the masterpiece of God. amen, you are a masterpiece of God. आप परमेश्वर की सबसे अच्छी हस्तकला हैं,
हाथों की जो है दस्तकारी हैं। You are the best creation, the best work of God. आप अपने आईने के मुताबिक मत जाइएगा। Don't go off of what you think of yourself. आप अपनी एल्बम की पुरानी फोटोआं देख के हंस देना रहोगे थे Don't look at your old pictures and keep कि laughing. मैं कैसा लग रहा हूं या मैं कैसी लग रही Look हूं। how I look or look how I'm looking. आप वचन में पढ़िएगा, You look in the Bible. वाणी कहती है कि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से सृजा है, बनाया है। That the Lord has made you with his own hands out of love. वाणी कहती है इसी इफिसियों के 2:10 में It's written here in Ephesians chapter 2 verse कि 10. उसने आपको बड़े प्लान के साथ, बड़ी योजना के साथ, बड़े मकसद के साथ आपको सृजा है, आपको बनाया है। That God has prepared us in advance for his own plans. उसने बड़े ही खास मकसद, एक मिशन के साथ क्रिएट करके आपको इस जमीन पर रखा है। He's brought you here with a special mission in mind. जबूर 139 में लिखा, दाऊद कहता है, Psalm 139 139 it's written, David उसकी says, 13 और 14 में दाऊद कहते हैं verse 13 and 14 David कि says, खुदा ने मुझे बड़ी ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, मेरे को छोटा सा जब था तब से मुझे रचा है, बनाया है। that the Lord has made me when I was just very small and created me very mightily. माँ की गर्भ से जब मैं बिल्कुल टाइनी लिटिल एक टिश्यू था तब से उसने बड़े ही अच्छी तरीके से, अद्भुत तरीके से, बड़े ही सामर्थ्य तरीके से उसने मुझे बनाया है। In a very spectacular way, anointed way, he made me in my mom's womb. देखिए खुदावन की बड़ी योजना है आपके बारे में। Look, the Lord has a big plan for you. आपको खुदावन ने खास तरीके से, बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े खास मकसद के साथ आप दुनिया में आए हैं। God has brought you here in a special way for a special purpose. आप जानवर से नहीं निकले हैं You're not made of an animal और आप गॉड भी नहीं हैं। and you are also not God. दो एक्सट्रीम है दुनिया में। There are two extremes in this कभी world. तो बोलते हैं ये जानवर से पैदा हुए, एप से आए हैं, Some say you're made out of apes, और कुछ कहते हैं मेडिटेशन करो, आप तो खुद ही गॉड हैं। and some people say meditate, you ये yourself are God. दोनों प्रॉब्लम है, दोनों मुसीबतें हैं। These are both problems. आप और मैं ना तो गॉड हैं और ना हम जानवर से आए हैं। You and I, neither are we God nor are we हम animals. खुदावन के बच्चे हैं, उसकी औलाद हैं। We are the children of God. We are his kids. उसने हमें अपनी छवि में, अपनी इमेज में, अपनी सूरत में बनाया है। He has made us in his own image. उसने हम पर अपनी छाप लगा रखी। He has made his marking on us. उसने हमारे अंदर अपनी जिंदगी का सांस फूका है। He's breathed his breath in our उसकी lives. रूह का अंश हम में पाया जाता है। His part of his spirit is found in us. ठीक है, वो परम आत्मा है और हमारे अंदर आत्मा है, मतलब उसका हिस्सा हमारे अंदर पाया जाता है। He is the spirit and we are a spirit. We are filled of a spirit. So we have a खुदा piece of की him. वजह से, उसकी रूह की वजह से हम जीवित हैं और दूसरों से हटकर हैं, सब प्राणियों से हटकर हैं। By his spirit we are alive and we are different and separated from everybody else. इसलिए हम अपनी तुलना जानवरों से या जानवरों के उन टिश्यू से मत ढूंढिए। आप खुदा का मास्टरपीस हैं, सुप्रीम क्रिएशन है खुदावन की। This is why don't look for your resemblance in animals. You are a masterpiece of God. एक हवाला मैं चाहता हूं आप पढ़े जरा, We're going to look at another verse. यह इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 19 पढ़े जरा। इसमें क्या लिखा है? Ephesians chapter 2 verse 19. 2:19 में ऐसा लिखा हुआ है। तू ट्रांसलेट करना, तू नहीं देखना। हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ। अब आप स्ट्रेंजर्स, इस दुनिया में अनजान और विदेशी नहीं रहे हैं, You are no longer strangers or foreigners. पर क्या हो तुम? You are saints. कुड़िए शारदे हवाला, तो मेरे पीछे चलना तो Okay. ठीक है। You are what? You are saint. आप संत हो. ठीक है। आप पौलुस के द्वारा खतों को देखिए जरा, उसने जो Look at लेटर्स लिखे उस पर ध्यान दीजिए। Pay attention to Paulus's letters To the church and to the saint of Corinth. to the church and saints of Corinthians. करंथिया के लोगों को कल लिखा है तुम संत हो। He's written to the people of Corinthians that you guys are saints. रोमिया के खत लिखा है रोमिया में जो संत रहते हैं उनको। In Romans, he's written the people, the saints that are in Rome. बाद में लिखा उन्हीं चैप्टर में, उन्हीं किताबों में Later, it's written in those book, in the कि letters. तुम झगड़ा करते, तुम ये नहीं ठीक कर रहे, ये नहीं ठीक करे, पर ऊपर टाइटल क्या दिया? तुम क्या हो? संत।
He's saying that you guys are fighting, you're doing this wrong, you're doing that wrong, but on the top he's written that you are what? You're saints. क्यों? रूहानी तौर पर खुदा ने आपकी रूह को संत बना दिया है. Why? Because spiritually God has already made your spirit उसने saints. अपने बच्चे बच्ची बना दिया है. He's made you his children. पर फिर भी अभी हम ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आत्मिकता में. But we're still growing and progressing in God. जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है. In John chapter 1 verse 14, 1:14 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको बेटा बेटी होने का हक दे दिया है. those who have accepted him, they have the right to be called their daughters and their sons. ठीक है. 1:14 में 12 में लिखा है इनफैक्ट, In John 1 verse 12. जितनों ने यीशु को कबूल किया है, ग्रहण किया है, उन सबको परमेश्वर ने अपने क्या बच्चे होने का हक बख्श दिया है. All of those who have accepted Christ, God has given them the right to call them his father. They are his sons and daughters. हम खुदा के स्लेव नहीं हैं, उसके गुलाम नहीं हैं. उसने हमें बच्चे बनाया, औलाद बनाया है हमें. We are not his slaves. We're not enslaved to him. We are his children. ठीक है. खुदा ने कहा कि अगर तुम्हें कोई छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है. God said that if anybody touches my child, it's like they're touching my pupil. मैं कहता है कि ये मेरे प्रेशियस खास बच्चे हैं. ये These are my precious, my special children. पहला पत्रस चैप्टर 9 वर्स 9 में लिखा है, तुम याजकों की शाही मंडली हो. In 1 Peter chapter 1 verse 9, 2 वर्स 9 में verse ऐसा 2 लिखा है, that you are a chosen people, chosen people. रॉयल priesthood, याजकों की शाही मंडली. ठीक है. ऐसी कौम जो खुदा ने अलग करी हुई है, खास है, मेरे निजी है, मेरे पर्सनल लोग हैं उसमें. You are a special people, separated just for me, special. My peculiar people, he said that. Yes. है ना, खास लोग हैं, निज प्रजा है मेरी. You खुदा are उनके special people, my chosen people. खुदा हमें खास रुतबा देता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं. तो हम जो हैं ऐसे तिरस्कृत किए, बेकार से फेंके हुए से लोग नहीं, खुदावन खास औलाद बच्चे होने का हक बख्श देता है. We're not thrown people set aside. We are his special, chosen, loved, dear children of God. आप पहला ज़बूर उसकी पहली 3 पंक्तियों को पढ़ते हैं जब, In first Psalms, and you read the first 3 verses, उसमें लिखा है, मुबारक बंदा, मुबारक शख्स, मुबारक धन्य व्यक्ति कौन होता है. they said, who is the blessed person? ठीक है. जितने लोग लिखा है बुरी संगत में नहीं जाते हैं, अच्छी संगत में जाते हैं, बुरे कामों में नहीं जाते हैं, प्रभु के कामों में जाते हैं, वो शख्स क्या है, मुबारक है. लिखा धन्य है वो. Blessed is that man who doesn't go with foolish people but stays with godly people. लिखा कि दिन रात प्रभु के वचन पर ध्यान करता है, उसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है, वो लोग धन्य हैं, मुबारक हैं कहा गया है. Blessed are those people who meditate on the word of the Lord. समझ रहे आप? Are you आपको क्या understanding? कहा गया? मुबारक लोग, धन्य, ब्लेस्ड लोग. What are you called? You're called blessed people. आज दुनिया में पता क्या होता है? You know what happens in the world today? जो बड़े जिनका टैलेंटेड सा होता है, जो बड़े सुप्रसिद्ध से होते हैं, People बड़े that are, फेमस होते हैं, yeah, famous people, जो बड़ा अच्छा जिनका जो टैलेंट्स है, गिफ्टिंग है, नजर आती हैं, जो famous and talented people that are noticed a lot, लोग कहते हैं बड़ा ब्लेस्ड है ये, and they say he's very blessed. उसकी गाड़ी को देख के बड़ा ब्लेस्ड है ये, His car is उसके great, घर very को देख के blessed. बड़ा ब्लेस्ड है. His house, he's very और blessed. परमेश्वर क्या कह रहा है? And what is God saying? जब आप मेरे वचन पर मनन करते, ध्यान करते, मेरी वाणी के अनुसार जिंदगी जीते When you हो, meditate on my word and live according to the word, तो वो ब्लेस्ड है. then he is blessed. उसका चाल चलन बताता है कि वो ब्लेस्ड है. The way he walks tells you that he is blessed. उसका चरित्र, उसका चाल चलन बताता है कि वो मुबारक है या नहीं. His characteristics, just looking at him, tells you that he's blessed. कैसी वो बातें करता है या करती है, उससे पता चलता है कि वो मुबारक है. The way that he speaks or talks tells you that this person is blessed. उसका फेथ डिफाइन करता है कि वो ब्लेस्ड है, आशीषित है कि नहीं. Their faith defines and tells you that they are blessed. ठीक है. दुनिया की निगाह में ब्लेस्ड कुछ और लोग होते हैं, In the eyes of the world, blessings is something else. पर खुदावन की निगाह में आप आशीषित लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं भाई. But in the eyes of the Lord, you are a blessed person. आप पढ़ें, आप इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 3 को पढ़ लीजिए. नहीं You read Ephesians chapter 1 verse 3. पढ़ लीजिए. मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें जरा, आपको थोड़ा तसल्ली सी हो जाएगी, आपको खुद के बारे में जो है डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. You चैप्टर should 1 read वर्स, this because you'll learn about yourself and you'll be happier. इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 3, कोई भी पढ़ दे बुलंद आवाज से. हाँ हाँ हाँ
उसने क्या दिया है? What did he do? आशीषें दी हैं, ब्लेस किया है He has blessed us. with all the spiritual blessings from heaven, है ना? सारी आत्मिक blessings के साथ. ठीक है, खुदा ने हमें हर प्रकार की बरकतों से नवाजा है खुदा उन यीशु की वजह से. God has blessed us with many things because of Jesus. ठीक है, तो इसलिए आप जो हैं आपने सोच लेना कि शराब उपशगुन मुझसे दूर रहता है. That's why you have to know that curses stay away from me. They are not part of me. मेरा हिस्सा नहीं है. मैं उस सब कर्सेस से निकल चुका हूं. यीशु ने मेरे सारे शराब उठा लिए हैं. I am away, departed from these curses because Jesus has lifted them off of me. सारे शराब अपने ऊपर ले लिए हैं. Jesus took all the curses upon सारी himself. गुनाह की सजा अपने ऊपर ले ली है. He took all the sins upon पाप का himself. सारा बोझ मेरी खातिर उसने सलीब पर सह लिया है. He already took all my burden on that cross with जितना him. पाप का भुगतान यीशु ने मेरी खातिर कर दिया है. He has paid for all my sins. अब मेरे पाप माफ हो चुके हैं. And now my sins अब मैं are, सेव्ड हो चुका हूं. and I am saved. मैं बचा लिया गया हूं. I am saved. आजाद कर दिया I गया am हूं. freed. अलग कर दिया गया I'm हूं. separated. इसलिए मैं आशीषित हूं. That's why I am blessed. आमेन. Amen. इसलिए मैं आशीषित हूं, ब्लेस्ड हूं, धन्य हूं, मुबारक हूं मैं इसलिए. This is why I am blessed, happy, and anointed. क्योंकि यीशु ने मेरे सारे शराब मुझसे दूर कर दिए हैं. Because Jesus has taken away all my curses चाहे from me. पीढ़ियों से आने वाले सारे शराब, Whether there were curses from generations, चाहे बाप दादों की गलतियों की वजह से हमारे साथ whether थे, there were curses because of या mistakes of फिर my father, हमारी गलतियों गुनाहों की वजह से अगर शराब हम पर आए or हैं. even if it was my own mistakes, जब मैंने पापों को कबूल किया, when he took my sins, when I did, when I did my sins, when I repented of my sins, when I repented of my sins, confessed Jesus Christ as my Lord and and Savior, accepted Jesus, Yeshua Masih को अपनाया, that very moment He took all my sin, sickness away from me. उस समय उसने मेरी सारी बीमारियां मुझसे दूर कर He दी. took all my curses away from my उसने life. मेरी सारी बीमारियां मुझसे दूर कर दी. I'm no more cursed. I'm blessed in Christ Jesus. I'm not cursed, I'm blessed in Jesus. तो तर्जुमा करना, तू अंग्रेजी जी नहीं पूछ. कोई गल नहीं. Amen. मैं मसीह में क्या हूँ? What am I आशीषित in हूँ. Jesus? I am blessed. मैं खुदा में बरकत पा चुका हूँ, पा चुकी हूँ. I have obtained blessings. ये जो है आप अपने बारे में ऐलान करना है. You have to proclaim this. ये बात आपने ऐलान करके शैतान को घोषित कर देनी है. उसके सामने उसको बोल देना है कि आप अभी शराब का हिस्सा नहीं है. You have to proclaim this in front of the devil and tell him that you are not a part of this curse anymore. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 पढ़े. एक और हवाला है जिससे आपकी हेल्प होगी ये जानने के लिए आपका पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है. चैप्टर 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरा करंथियों का खत 5वां अध्याय 17 verse 17. हाँ जी, हाँ, इसलिए अगर कोई यीशु मसीह में है, हाँ, वो क्या है? नया मखलूक, नई सृष्टि है वो. ठीक है, New creation. और पुराने दा किया हो गया, पुराना खत्म हो गया. The old has gone. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You get that point? आप If समझ you रहे हो? are in Christ, old has passed away. Behold, everything has become new. अगर आप यीशु मसीह में हैं, पुराना सब चला गया है और नया आ गया है. हम नए बन चुके हैं We are new मसीह यीशु की वजह से, because of Jesus Christ. सलीबी मौत की वजह से. Because of his death on the cross. कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे खातिर जो कुर्बानी हुई है, जो शहादत दी है, जो मार सही है, कुर्रे सहे है, उस वजह से आप और मैं सारे शराब से निकलकर नए बन चुके हैं अभी. Because of that cross, because of the death on that cross, all our curses are gone and we are new. जब आप यीशु को कबूल करें, आप क्या कह रहे हैं? When you accept Jesus, what are you कि saying? यीशु ने मेरी खातिर मार सही, That Jesus took, मेरे पाप का beatings सारा for me? बोझ उठा लिया है, picked up all my sins, मेरे सारे शराब उठा लिए हैं, took all my curses, मेरी सारी गलतियां, गुनाह, त्रुटियां, खामियां उसने सब उठा ली हैं. picked up all my lackings and weaknesses. मेरे बाप दादों से चलती आ रही सारी कमियां, घटियों को सब उसने उठा लिया है. All the weak generation problems, he's picked them all up. और अब मैं यीशु में आजाद हो चुका And now I'm free in Jesus. हूं. उस वजह से Because of that, पुराना सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया. all the old has finished. पुराना वापस नहीं अभी लेके आना, And it's not going to come back. ना घर में लेके आना है,
Don't bring it back home. ना गाड़ी में लेके आना, Don't bring it to your ना car. वॉलेट में लेके आना, Don't bring it in your wallet. ना दिमाग में लेके Don't आना, bring it in your mind. ना कल्पनों में लेके Not आना, even in your thoughts. उसको दूर ही रहने दे। Leave it afar. अगर आप करीब करेंगे If you bring it closer, तो वो ऑलरेडी बैठा हुआ वापस आने के then लिए it's waiting there to come back. पुरानी चीजों पर बैठ जाता है वो। Sits on old things. बदरुएं पुराने ऑब्जेक्ट के पास आकर बैठ जाती हैं, Evil spirits come and sit by पुरानी old. वस्तुओं के objects. पास उस जरिया बन जाता है जिससे वो उसको एंट्रेंस मिल जाती है। Those evil spirits have an entrance through old things. पुरानी चीजों से Through old things. और Items. पुराने म्यूजिक के थ्रू से। And even through old music. समझ रहे कह रहा म्यूजिक? Are you understanding about the music? पुरानी तो ही कोई कव्वाली कड्डी है, पुराना कोई भजन कड्डिया, पुराना कोई कीर्तन कट के ला लिया, There's an old song that they sang, a folk song, and you take it out and you play it. ठीक है? पुरानी जिसमें पुरानी देवी देवतियों की पुरानी चीजों के बदरुओं की बड़ी सराहना बड़ी प्रशंसा करी गई, ऐसे गीत आपने निकाल के लगा दिए हैं Old songs where these entities are praised. तो आप सुन रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, And you put those on and you're listening and you're enjoying. उसको इनविटेशन आ गया, And it has an invitation to come back. तो वो आ जाता है वापस, And it comes back. आपके ख्यालों में आना शुरू हो Comes जाता in your है, thoughts. आपकी कल्पनों में आना शुरू होता Comes है, in your mind. आपके सपनों में आना शुरू हो And जाता comes है, in your dreams. क्योंकि आपने बुलाया है, Because you called it. आपने तारीफ करी है, You praised it. आपने उनकी प्रशंसा से जो है लुफ्त उठाया, आपको अच्छा लग रहा है, You praised it and now you're liking it. आप कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, मैं रेडी हूँ, And you basically ask for the bull to come and hit you. Right. Because you're ready. तो फिर कहेंगे पता नहीं कितना आके आ गया And वापस। then you say, I don't know how that thing happened or how it came. पुरानी बातें क्या होगी? The old things, what happened? जाती रही, They're gone. They're finished. आपने खुद को कहना है, You have to say it to सोचना yourself. है Think about कि it. पुरानी चीजें गई हैं कि नहीं गई हैं, That are my old things, is my past gone or not? पर जब गई ना हुई तो आप उधर के जे गई, पुरानी चलेगी जी, And you're saying that no, I let पुरानी it go, but it चलेगी जी, didn't. पर गई नहीं है, But it didn't really go. कहने से नहीं होगा, It's not done by just saying it it. has to go, It has to be done. you It has have to go. to move it, You have you to have to remove it. throw those things out from your life. निकाल के फेंकना पड़ेगा अपनी You जिंदगी have में to से. throw certain things which create or bring demonic forces in our lives. फेंकना पड़ेगा वो चीजें जो जिंदगी में गलत स्पिरिट्स को लेके आती हैं. Sometimes they are in our mind, in our imagination, and they attract demonic forces. We have to throw them out, cast them out, expel them out from our lives. कई बार वो हमारे दिमाग में होती है, हमारे सोच और विचारों में होती है, तो हमें कैंसिल करना पड़ता है. Amen? Amen. And वन कह रही है, अगर जितने मसीह में हैं, कितने? If सारे जितने, right? all those in Christ, जितने मसीह में हैं, वो सब जो है नए हो गए, पुरानी क्या होती होगी? जाती रही है. all those in Christ will be new and all the old will be gone. अगर पुरानी अजय आए भी थे, And even if the old does come तो back, आपने क्या करना है? so what do you got to do? बाइबल कहती है, resist the devil and he will flee from you. शैतान के सामने खड़े होना और वो आपसे भागेगा. डांटो से, Rebuke it. ये नहीं मेरा एड्रेस, This is not my address. this is not me anymore. This is not मैं ये नहीं हूँ. All things are past, they are gone already. The past is gone. पंजाबी च, हिंदी में, ठीक है? Already gone, they are left. सब पुराना चला गया. अब ये यहाँ पर कोई नया एड्रेस में कोई और रहता है. Now this is a new address and someone new is living here. Everything has become new. सब कुछ नमा है. Everything का मतलब क्या होता है? What does everything mean? Very, आप सबसे स्मार्ट चर्च है. You're the smartest church. Everything मतलब, Everything Everything. means everything. right? Whether it is in your mind or in your body, in your house, in car, everywhere, everything means it has to be new. चाहे वो आपके शरीर में, दिमाग में, घर में और गाड़ियों, सब कुछ नमा है. जाने से पहले चर्च निकलने से पहले आपने वॉलेट पॉकेट गाड़ी चेक कर लेनी है, ऐसा ना कि मैंने होरी सामान मिल जाए आपका. Before coming to church, check your car, your wallet. I don't want to find something in there. Let me tell you something very smart which is in your smartphone. आपको एक बात बताता हूँ जो आपके स्मार्टफोन में. Some of the phone numbers you need to delete. कई फोन नंबर है आपको डिलीट करने हैं. Some people you have to unfriend. कई दोस्तों को अनफ्रेंड करना है. दोस्त हटानी है, दोस्ती हटानी है. Right. Somewhere you have to make changes. कई जगहों पे आपको बदलाव लेके आना है. क्योंकि ये सोशल मीडिया से भी कुछ चीजें आपके साथ अटैच रहती हैं. Because through social media, sometimes these things are attacking you. कई बार पुराना खत्म हो गया होता है, पर वो रिमाइंडर आता है ना, आपका फोन टुंग बजता है, आपकी हलचल हो जाती है.
Although sometimes the old is gone, you sometimes get a notification on your phone They and keep reminds sending you. you something. And they keep sending you things. Yeah, you keep receiving some things in your life. और आपको कुछ ना कुछ रिसीव मिलता And मिल sometimes जाता you है। read them और कभी कदार आप पढ़ and लेते you हैं feel like getting back to the same old track. फिर आप सोचते हैं कि यार ये पुराना सही था। बाइबल क्या कहती है? Old has gone What does the Bible say? The old is gone. and new पुराना has चला गया come. और नया आ गया है। ठीक है, उसको आने भी नहीं देना, करीब भी नहीं आने देना। Don't let the old come back. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हवाला पढ़े जरा। We'd like to read a verse पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक The आपके Holy- लिए लिखा है, बड़ा अच्छा हवाला लिखा है। in the Holy Bible. It's written very nicely. You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। Yes. ये तो आपको वैसे हवाला पढ़ने की भी लोड़ नहीं, हम गाते हैं यार, right? Yes. We don't have to Who read we this are? because we sing it. 2 Corinthians, 1 Corinthians में लिखा है, you are the temple of the Holy Spirit. It is written in Corinthians that you are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा ये के मंदिर है। हमारी क्या है? पहचान है। What is this? This is our identity. चर्च क्या है? What is the church? You are the church. आप church है। कहाँ पर प्रभु रहते हैं? Where does the Lord reside? In this temple. इस मंदिर में। ठीक है, आप चलते फिरते चर्च हैं। You are living, walking, talking church. अगर आप चर्च के बारे में कुछ कह रहे हैं If you're saying something about the तो आप church, किसके बारे में कह रहे हैं? then who are you speaking about? आप शीशा आईना देख के कहा करो, Look at the mirror before you say something. because you are the church. Because you are आप church है। The Spirit of the Lord doesn't dwell in these walls, in this ceiling. पवित्र आत्मा इस दीवारों में इस छत में नहीं रहती है। पवित्र आत्मा इस pew में नहीं रहता है. He doesn't reside in this pew. He lives in us. वो हमारे अंदर रहता है। वो हमारे दिल में, हमारे शरीर में बसना चाहता है। He wants to reside within our hearts आप and our और मैं body. जब चलते हैं तो चर्च चलता है। When you and I walk, the church walks. आप मूव करते हैं तो चर्च मूव करता है। When you move, the entire church moves. आप ड्राइव करते हैं तो चर्च ड्राइव करता And है। when you're driving, the church is driving. You are the church. आप church हैं। आप कलीसिया हैं, खुदावन के लहू के द्वारा खरीदी हुई कौम, अलग किए हुए लोग, आप चर्च हैं। You are the Lord's chosen people, separated by Him. ये चर्च के इकट्ठा होने की जगह है, आराधना घर है ये। This is a place where the church gathers. This is a place of worship. हिंदी, पंजाबी, उर्दू में इसका अनुवाद बड़ा अच्छा है एक्चुअली। In Hindi, Punjabi, and Urdu, there's a good translation. गिरजा घर। Girdaghar. Worship house? No? I don't know. Yeah, yeah. Worship house? Yeah. It's not like a church. Church, it means a house where people get together to worship. ठीक है? वो जगह जहाँ पे लोग इकट्ठे होके आराधना करते हैं। Even further level कह दिया गया है। And it's even said further, गिरजाघर मीन्स जहाँ पर लोग जाके गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। the Girja house also means where people go and they lower themselves and they bow down. Humble करते हैं अपने आप को। They humble themselves. गिर जाके गिर जा भाई। Girja means to fall, and that means to, Fall sit down, fall prostrate, down. bow down, worship. That's what it is. Yes. भाई यहाँ आकर आप अपने बारे में शेखी मारना छोड़ दीजिए। Stop coming here and boasting about यहाँ yourselves. पर आके जब हम प्रभु के हुजूर आते हैं तो हम जो है अपने आप को एलिवेट या अपने आप को ऊंचा करने की बजाय खुदावन पिता परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। Instead of elevating and lifting up yourselves, you have to lift up the Lord here. इसके बजाय कि हम सोचे कि मुझे क्या अहमियत मिलेगी, मैं कैसे ऊंचा हो जाऊं, यहाँ पर गिरजे का मतलब कि आगे गिर जाना है, झुक जाना है, नम्र हो जाना कि प्रभु मैं नहीं, आप ऊंचा हो जाए। Instead of lifting up yourselves and thinking about yourself, it's called the Girja house. You have to fall down upon your knees जब हम and lift up God. नेक्स्ट टाइम आप जब चर्च आते हैं तो आपने क्या सोच के आना है? Next time when you come to church, what are you going to think about when मैं you कहाँ come? जा रहा हूँ? Where am I going? जहाँ मैं जाके झुक रहा हूँ, Where I will go and get on my जहाँ पर मैं knees. जाके गिर रहा हूँ, झुक जा हूँ, अपने आप को फॉल करांगे, खुदावन तू ऊंचा हो जाए। The place where I'll fall down low and lift up God. आमेन। Amen. इसलिए यहाँ पर खुदावन ऊंचा हो, ऐसा ग्रुप जिसमें खुदावन को ऊंचा किया जाता है, प्रभु को ऊंचा किया जाता है। That's why the Lord should be lifted up. This is the group that's going to lift up God. एक और हवाला मैं चाहता हूँ, कुलुसियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 9 and 10 को पढ़ें, बहुत ही पावरफुल। Was it Galatians? कोलोशियंस, Colossians. कोलोशियंस, कुलुसियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, दो उसकी 9 और 10 आयत Yes, Colossians chapter 2, verse 9. पढ़ें कोई भी।
ओके, मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करता हूँ. In Christ Jesus, fullness of God had dwells. तर्जुमा करो अपनी लैंग्वेज. हिंदी में हाँ जी. जहाँ पे I don't know. ओके, कोई नहीं. Don't worry. I know it's hard. Yeah. यीशु में खुदा की भरपूरी 100% रब बसता है. सिंपल वर्ड में. Where God resides 100%. Not भरपूरी, fullness of God. Not 10%, 40% or 50%. Not a portion of God. Rather, fullness of God dwells in Jesus Christ. That's what it is. Right? 10, 20 या 40% नहीं, पूरे 100% Jesus वहाँ reside And करते then हैं. continue. और तुम, ये दूसरा वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है. And you, this is very important. और तुम उस भरपूर 100% खुदा की भरपूरी में क्या हो गए हो? भरपूर हो गए हो. And you are filled 100% with Him. Amen. Amen. This is a very important part. ये बहुत ज़रूरी part है कि you are filled with the same fullness which Jesus carried. कि आप उसी fullness से भरे जो यीशु मसीह ने लिया था. उस भरपूरी से आप फुल होके भर के अपने आप को ले जाते हैं. You're going to take yourself in all fullness. चर्च आके When you come to church, कोई गुस्से ना भर के ना जावे, don't go home angrily. निराशा से भर के ना जाए. Don't go home sad. आप जो हैं चर्च में आकर खुदावन के हुजूर में आके किसी और चीज से भर के जाने के बजाय किसे क्राइस्ट के फुलनेस से भर कर हम जाएं. Instead of going home with being filled with something else, be filled with Christ and go home. लिखा है in Christ Jesus fullness of God dwells and from their fullness we are filled up. Amen. Amen. जितना गैस स्टेशन नहीं तो तुझे जाके आप फिल कर टैंक फुल करा के आ जाते. Just like how when you go to a gas station and fill up your tank. ठीक है. फिर जे वो गैस स्टेशन जो ऑलरेडी गैस है नहीं तो तुझे जाके गड्डी खिलारी हुई है अपनी. And what if that gas station has no gas and you're parked over there? तो आप बोले कि फिल द टैंक. And you're like, fill up the tank. तो बोला आगे बढ़ो खाली है टैंक. He's like, go forward, this tank is empty. जब उनके पास आप फुलनेस नहीं है आपको फुलनेस नहीं दे सकता. If they themselves don't have a full tank, how are they going to give you a full tank? अगर किसी को थोड़ा सा रेवलेशन है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ये है, आपको फुल कैसे दे देंगे वो? If someone has a little bit of revelation or understanding, how can they give you full understanding? क्योंकि खुदा की खुदाई सिर्फ यीशु में फुलनेस 100% बसेरा करती, किसी और में है ही नहीं. Because God resides completely only in Jesus Christ and no one else. आपने वहां से फिल टैंक कराना है जहां पर फुलनेस पाया जाता You है. got to go where there is already a tank full. Amen. Amen. Nowhere else, only in Christ you get the 100% of Godhead. और कहीं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह में complete खुदा मिलता है. और दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी जहां से आप फिल इन कराते हैं. And the other thing is important, where you get yourself आप filled. कहां से भरते हैं अपने आप को? Where do you fill yourself? कौन सी भरपूरी से आप लेते हैं? What fullness do you take? कौन सी चीज से आप अपनी अभिषेक अपना मसा ड्राइव करते हैं या रिसीव करते हैं? Where do you receive your anointing? If it's from Christ, you get the fullness. अगर वो यीशु मसीह से है तो वो पूरा है. Okay, now John chapter 10 verse 10 में लिखा है चोर नहीं आता बल्कि चोरी करने, नाश करने और हलाक करने, घात करने. In John is written that the thief comes to destroy, Kill and steal, kill. and destroy, right? But I have come मगर मैं आया हूँ that you might have a life कि आपको जिंदगी मिले and life in abundance. और भरपूर जिंदगी, भरपूर जिंदगी मिले. कसरत की जिंदगी. कौन सी जिंदगी? Full, Life of overflowing वाली. fullness. ठीक है. That's what हमारी आइडेंटिटी क्या है कि हम खुदावन यीशु से संपूर्ण भरपूरी कसरत की जिंदगी पाते हैं. That's our identity in Christ, that we have a life of fullness. आपकी पहचान क्या है? What is your identity? आप प्रभु यीशु के आत्मा के रहने का मंदिर है. You are a temple for the Lord to reside in. आप पवित्र आत्मा का एड्रेस हैं, वो वहां पर रहते हैं, रेजिडेंट ऑफ द होली स्पिरिट. You are the address of the Holy Spirit. आमेन. Amen. आपकी पहचानी में मैं जी बिल्कुल निकम्मा बेकार गंदी नाली का कीड़ा निकम्मा बेकार पटरम पटरम जो मर्जी आप कहते रहे वो आपकी पहचान नहीं है. You're not what you say that you are. You're low, you're weak, you're useless and worthless. That's not you. Bible says you are my child, The Bible says कि आप मेरे बच्चे हो. chosen people, You're मेरे चुने हुए. blessed, आशीषित. gifted, set apart, सबसे अलग. अलग किए हुए हैं और खुदावन की आशीषों से भरपूर किए गए हैं.
And you're filled with the blessings of the Lord. कुरिन्थियों के खत में लिखा है you are the ambassadors of Christ on the earth. In Corinthians it is written that you are the ambassadors of Christ. You stand up for Christ. आपने कभी एम्बेसडर जाते हुए देखा है? Have you ever seen an ambassador going? आप जो न्यू दिल्ली से जो अपनी एम्बेसी कितने इस्लामाबाद से जी ओके आप जाकर न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में चेक करें एम्बेसीज जो होती हैं If you go to New Delhi, you'll see the ambassador over there. ठीक है वहाँ पर अलग कंट्रीज के हमारे मुल्कों में वहाँ पर उनकी एम्बेसीज बनी हैं और वहाँ पर एम्बेसडर काउंसलेट होते हैं Yes, there's embassies there for other countries, and that's where the ambassadors sit. ठीक है वो रहते उधर हैं They live there, पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं but they represent their own country. उनका तौर तरीका रहना खाना पीना सब जो है बैक होम कंट्री के साथ कनेक्टेड है They live, reside, walk, talk like the way they do in their own country. उनकी मर्जी And it's their wish. आपको वीजा देंगे नहीं तो गो होम It's their wish that if they're going to give you the visa or not, you're going home. उस राजदूत के पास काउंसलेट के पास एम्बेसडर के पास अथॉरिटी है That consulate, he has the authority to give you जो that वो visa. कहता है वो मुल्क की आवाज है What he says, he is the voice of that country. जो कुछ वो कहता है उससे जो है सब कुछ मुल्क के आदान प्रदान होता है Whatever he says is related and according to his own country. खुदावन प्रभु क्या कह रहे हैं And what is the Lord इस saying? जमीन पर मैंने आपको एम्बेसडर बनाया है In this world, I've made you the ambassador. आप आसमानी बादशाहत के क्या हैं राजदूत हैं You are the ambassador of the heaven. और आप स्वर्गीय बातों को जो क्या है बयान करने वाले हैं And you have to reveal the words and the things of heaven. आपके स्टेटमेंट में बड़ी पावर है There is much power in your own statement. आप बहुतों का वीजा लगवा सकते हैं You can get many people to get their visa. कोई कला ए स्टेटमेंट ना यूज कर ले ऑनलाइन के कई पास जी वीजा लगवा रहे हैं Don't use that statement that Pastor G is helping them get visas. I'm only talking about heavenly He's visa. talking about heavenly visas. Amen. Amen. You can share the gospel, somebody can get saved and they become a citizen of heaven. आप वचन कुछ लोगों से साथ बांटे और वो बच सकते हैं और स्वर्ग के आपको खुदा ने बड़ी सामर्थ दे रखी है God has blessed you. हैंकी फैंकी हिसाब से मत चलिएगा Don't walk around just like that. आप बड़े हिसाब से चलिए क्योंकि राजदूत के चाल चलन का एक खास रुतबा होता है एक स्टैंडर्ड होता है Walk with much authority. बड़े इख्तियार के साथ चले Walk with much zeal. बड़े आप ईमान के साथ चले Walk with faith. कि आपके बिहाइंड में एक पूरी कंट्री जो आपको बैकअप करती है That behind you a whole country is backing you up. The whole heavens backs you up. The entire heaven backs you up. There's a power in heaven that backs you up and pray for you, intercede on your behalf. स्वर्ग की ताकतें आपका साथ निभाती है. And no power of darkness can touch you. शैतान की कोई भी चाल आपको छू कोई नहीं सकती. demon in hell cannot do nothing because you've been backed up by the heavenly forces. शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि स्वर्गदूत आपकी खुदावन अगुवाई कहता करते है हैं. मैं तेरे चारों तरफ पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा दूंगा. The Lord says that I have surround you angels. अगर कोई तुम्हें छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा. If anyone touches you, they touch the people of शैतान my eye. आएगा एक तरफ इतना हालत खराब करूंगा 7 रास्ते दौड़ जाएगा The उसमें devil लिखा will है. come in one way and be burdened so badly he'll I run in will 7. fight your battle. That's what he says. मैं आपकी लड़ाई है आपके लिए लड़ूंगा. कहता है मैं फरिश्तों को भेज देगा तेरे लिए वो जंग लड़ेंगे. He says I'll send the angels for you and they will fight for you. Amen. Amen. क्योंकि आप खुदा के राजदूत हैं. Because you are an ambassador of आप God. खुदा के खास लोग हैं. You are his chosen people. खुदावन के बच्चे हैं You आप. are his children. आपकी पहचान फर्क है. आप लोगों की पहचान के हिसाब से मत Your रहिएगा. identity is different. Don't go off of what people say to you. खाम खा रोते मत रहो. उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया. Don't stand there crying that he said this to me or that to me. दफा करो जिन्हें जो मर्जी कह दिया है. Forget what they said to you. आप बाइबल पढ़ो उसमें क्या कहा है आपके Read the बारे में. Bible and see what it says छोड़ो about you. उनको जो कहते हैं. Forget what they say about आप you. इस पर बिलीव करो You believe in the कि Bible. मेरे बारे में खुदा उनके वचन में ये Look लिखा what the हुआ है. Bible says about मैं me. खुदा उनका बच्चा हूँ. I am a child of God. अलग किया हुआ हूँ. I am separated. पाक किया गया I am हूँ. holy. आशीषित किया गया am हूँ. blessed. खुदा ने मुझे ब्लेस्ड कहा The है. Lord has called me मुझे blessed. खास लोग कहा गया He's chosen है. me as वो specialty. अलग किया गया कहा I'm गया है. separated. मैं उसकी औलाद हूँ. खास लोग हूँ मैं I उसके. am his child. I'm special for him. आपने उस पहचान को आगे बढ़ाना है. You have to move उस forward that पहचान में identity. चलना है.
है You have to walk in that और identity उसी पहचान को कायम करके and रखना है maintain that identity. कि मैं उसका बच्चा हूं, मैं उस वजह से उसे मांग सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं। I am his child and that's why I can do this. आमीन। Amen. मैं चाहता हूं पांव के बल खड़े हो जाएं Let's जरा। stand on our feet, please. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समझें कि आपका फ्रीडम क्या है खुदावन में। You should understand what your freedom is in Christ. आप क्यों औलाद बनाए गए हैं? Why are you called children of क्यों God? आपको खुदा ने फ्री किया है, आजाद किया है? Why has God freed you, set you free? क्यों उसने आपको स्पेशल फोर्सेस दी है जो सराउंड करने के लिए? Why has He given you these special forces क्यों surrounding उसने you? खास सिटीजनशिप ऑफ हेवन आपको दी है? Why has He given you the citizenship of heaven? There's a purpose. एक वजह है, There's a plan of God. एक मकसद है यीशु Plan मसीह to bless you and prosper you. का। वो प्लान है आपको आशीषित करने के लिए। आपको जो है निराश मायूसी में रहने का नहीं है, आपको खास अच्छा भविष्य देने का है। You're not to be sad and disheartened, but to have a good future. आपने ढूंढते नहीं रहना आपका भविष्य जानने के बारे में किसी के पास। Don't look for your future to other people. No. Your future is secure in Christ Jesus. आपका भविष्य यीशु मसीह में सेफ है। He has saved you, set you free, and made you His child. That's good enough for you. उसने आपको बचा लिया, आपको आजाद कर दिया और अपना बच्चा बना लिया। आपकी हाथों की लकीर क्या कहती है, कहाँ जाती है, फिक्र नहीं करना है Don't worry आपने। about where the lines of your hand go. Don't worry about इस that. ग्रह उस ग्रह के बारे में नहीं सोचना Don't है। worry about these moons or the other moons. आप सिर्फ यीशु के अनुग्रह के बारे में सोचना Just है। know about Jesus. Amen. Amen. Think about the grace of God, यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे mercy में of सोचो। God, hand of God for you यीशु and मसीह के upon हाथ के you. बारे में सोचो। Amen. मैं चाहूँगा आंखों को बंद करें एक क्षण के लिए। We're going to close our eyes for a minute. आप अपने लिए ऐलान करें अपनी जिंदगी के बारे में। Proclaim this about your life. Who you are in Christ. आप कौन हो यीशु How you मसीह में? define yourself. अपने आप को कैसे आप दिखाते हैं? Let devil know that you are a child of God. शैतान को जानने दे कि आप Let यीशु him के know बच्चे you've हैं। been set free in Jesus Christ. जानने दो उसको कि आप आजाद हो। Let him know you've been saved from the all sickness, disease and sins of this world. उसको जानने दो कि आप बचाए हो हर बीमारी से इस दुनिया And की। Jesus has been gracious to you and He has forgiven you and given you a new life. यीशु मसीह ने आपको पर दया की है और आपको एक नई जिंदगी दी है। All things has been passed away. Everything has become new in Christ Jesus. सब पुराना चला गया और सब कुछ नया हो गया यीशु मसीह में। You're so new and different in Christ Jesus. आप नए हैं, आप अलग है यीशु मसीह में। खुदावन यीशु आपकी ओर जब देखता है तो खुश होता है। When the Lord looks at you, He is happy. वो आपसे बहुत खुश है। He's very happy with आप you. उसमें होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। You can do many things. पौलुस कहता है जो मुझे बल बख्ता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Paul says that He who gives me strength, I can do everything in Nothing that. is impossible for them they that believe in Christ Jesus. जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथों को उठाए जरा। Lift up your hands खुदावन का धन्यवाद करें अपने लिए, and thank the Lord God अपनी निजात के लिए, for your freedom. आपकी फ्रीडम के लिए, अपने निजात के लिए। आपकी गिफ्टिंग के लिए खुदावन का धन्यवाद करें, तारीफ करें। the Lord and praise Him. Thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु thank you मसीह। Holy Thank Spirit. you, God we पवित्र thank आत्मा। you, Holy Spirit we thank you. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद Oh करते हैं। Lord we thank you for all that you've been doing in our lives खुदा Lord. आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो कुछ शुक्रिया हमारी अदा जिंदगी करते में हैं, करा। आपका धन्यवाद हो। करते हैं, आपका धन्यवाद हो। स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, We worship you, God. यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। lift up the name of जलाली Jesus. बादशाह, We lift up मेरा Jesus. प्रभु, अनुग्रहकारी पिता, सनातन God. परमेश्वर है वो। We praise Him. Hallelujah, thank you Hallelujah. Jesus, धन्यवाद thank you यीशु Lord। मसीह। ओ Thank उसने you, हमें खुदा। पवित्र आत्मा दिया है He gave us the Holy ताकि Spirit हमें गाइड कर सके, so that He can ताकि guide हमें us, सिखा सके, so that He can teach ताकि us, हमें बल दे सके, so He can give us strength, ताकि हमारे द्वारा से अपना काम को पूरा कर that His सके। works can be done through us. हम उसके रहने का स्थान है, We are the place for Him हम to उसका reside. मकदस है, हम उसका मंदिर है। We are His temple. पवित्र आत्मा हम में बसता है। Holy Spirit resides शैतान within का कोई us. काम नहीं हम में रहने का, The devil has no room to live in बीमारी us. की कोई हक नहीं कि हमारे अंदर रहे। The disease cannot stay within us. ओ निराशा मायूसियों को वो काम नहीं हमारे ख्यालों सोचों में रहे। Sadness and depression cannot stay in our mind. We've been free in Jesus name. हम आजाद हैं यीशु के We've been नाम set से। free in Jesus हम name. आजाद हैं यीशु मसीह के नाम खुदावन से। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं Father, we thank तेरी you भलाइयों के लिए, for your goodness, अच्छाइयों के लिए, For the good stuff, शिफाओं के लिए, for your healings, बरकतों के लिए, for your blessings, तेरे फजल के लिए। for your और blessings. एक एक दिन एक
एक लम्हा के लिए खुदावन Thank you for every day, every time, every यीशु moment. के पवित्र नाम से हम धन्यवाद करते हैं, In the तारीफ holy name करते of हैं, Jesus, we स्तुति thank करते you. हैं, We praise you. महिमा तेरे नाम We को खुदा, glorify तेरे you, नाम का ऊंचा करते हैं जलाली Lift up your name, बादशाह. Father In the God. name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. हम दुआ यीशु मांगते के नाम को जलाल दे तालियों के साथ जरा. हालेलुया. एसी ऑन कर लीजिए कोई जन. हालेलुया. आप अपना दान दशमांश अपने हाथों में ले ले जरा. हैं. You can take your tithe and offering in your hands. Praise God. हम अपने दान दशमांश पर प्रार्थना करते खुदा उनके चरणों में सुपुर्द करेंगे. We're going to pray and bring our tithe and offerings to the Lord. Praise God. और जितने ऑनलाइन भी दे रहे हैं हम आपके दान दशमांश के लिए भी साथ में प्रार्थना करेंगे. And those giving online, we're also going to pray for your tithes and offerings. Praise God. खुदावन ये दान दशमांश आपने दिया है उसमें से ये हिस्सा हमारे शुक्राने की भेंट है. Father, this tithe and offering is from you, and this is the part that's our thanksgiving unto you. और खुदा हम चाहते हैं कि आप इसको ले और अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें. Father, we ask that you take this and use this for the kingdom. हमारी सारी कमी घटियां आपके स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाए. May all our lackings be fulfilled from your heavenly treasures. हम तेरे चरणों में लाके रखते हैं We bring it onto your feet, और यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं. and we ask this prayer in Jesus' holy name. Amen. Amen. Praise the Lord. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया. मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर. मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर. मैं हूँ उसका मेरा ना कोई सिवाय उसके. पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया. पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया. रात काली बीत गई है हुआ सवेरा. रात काली बीत गई है हुआ सवेरा. सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा. इसलिए मैंने ये गीत गाया. इसलिए मैंने ये गीत गाया. मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया. Amen. Amen. Thank you.